Jayanti. Om Shanti Aruniben. And Om Shanti to everyone. I'm sure everybody's been looking forward ओम शांति to जयंती this बहन। time, especially with Sister Jayanti. सभी को ओम शांति। And I want to say that सभी Sister बहुत Jayanti उमंग was उत्साह just से with us इस at the इंतजार retreat कर center. रहे She left a couple होंगे of hours जयंती बहन ago. के साथ ये घंटा She बिताने। gave us 4 full days. There was the UK teachers जयंती meeting. बहन We अभी had अभी about हमारे साथ भी 65 रिट्रीट resident सेंटर पर teachers 2 घंटे and another के 10 or बाद 15 just coming for the 2 घंटे day. पहले ही यहाँ थी। Um, 4 दिन it was यहाँ पर really थी। lovely. 65 Yeah, the टीचर्स beauty आई about थी, having 10 teachers टीचर्स come एक to दिन के Baba's लिए आए retreat थे। center is they add their बहुत ही अच्छी purity, रिट्रीट रही। they add their yoga power, they टीचर्स add बाबा their के glow, रिट्रीट सेंटर and पर you आते just थी। you can वहाँ पर immediately feel that पवित्रता बढ़ जाती है, vibration. योग की So शक्ति it's बढ़ less जाती work है, for us because अपनी they're चमक adding बढ़ाती है and और helping वो the energy to वातावरण में बहुत efficiently, smoothly flow. शक्तिशाली महसूसता होती है। And I just want तो to हम share a लोगों को couple of कम काम करना पड़ता things है that क्योंकि उनकी we एनर्जी took from the सब कुछ retreat. अच्छी तरह से चलाते So हैं। one of the stories that Sister Jayanti shared कुछ was बातें when मुझे शेयर करना है जो we रिट्रीट से got up मैंने in this लिया। meeting. I'm sure it's because एक with this कहानी video जयंती it बहन ने stays, बताई Jayanta. थी, वो था It stays forever. So the story is that somebody had brought a sweater for Dadi, and not for Dadi, but for Dadi to give to somebody. And Dadi loved it. कोई And दादी के then लिए एक Dadi asked स्वेटर his ले son, आए how थे much is it? कि दादी किसी और And को he दान said, it करे। doesn't matter, Dadi. तो दादी को And बहुत Dadi अच्छा said, लगा। yes, because I want तो another दादी six ने पूछा pieces. कितने का है ये, I want to तो give it उसने to कहा कोई others. हर्जा नहीं है। And he तो said, मुझे but Dadi, 6 tell और me, ऐसे why स्वेटर couldn't I चाहिए think क्योंकि like औरों that? को भी देना Why है। couldn't I have such a big, generous heart? And Dadi said, well, in order to तो have कह a रहे generous मैंने क्यों heart, नहीं सोचा कि you मैं need a clean 6 और heart ले and you आऊं, need an मेरा दिल honest क्यों heart. इतना बड़ा नहीं था। So that's something to तो think दादी ने about. If कहा your heart is pure and clean, बड़ा दिल honest and होने के clean, लिए then you can साफ have a दिल clean heart. चाहिए और सच सच Um, दिल चाहिए। yeah, another thing I like, Gentiben, is if I slip सच्चाई up, और सादगी होंगी if तो I बड़ा make दिल some होगा। mistake, if I slip up in the drama, it's not drama's और एक fault. और बात मुझे अच्छी It's लगी, my fault. अगर मैं कोई गलती करती हूँ And then there was a तो question ड्रामा about की how कोई are we गलती going to नहीं get, है, मेरी how are we गलती going to है। create that oneness, that one ड्रामा thought में जो with होना you? है वो तो होता ही How are we रहता going to है। be on that same wavelength? And Sister Jayanti was saying that it's हम when we एकता are कैसे all लाएंगे, जो हर एक the का one एक ही common संकल्प हो, denominator वो between all वहां of us तक is कैसे our पहुंचेंगे। love for God. And so, like any family, when there is a crisis, we हम pull सब में together because of our हम love सब for में God बाबा and the के लिए, Lord. ईश्वर के लिए And so प्यार है, here तो too, जब it's our love for God that सभी का will प्यार bring एक us साथ together, and it's मिलेगा also our तो purity. एकता आएंगी। And a lovely thing that Sudesh Didi हमारी shared was भगवान के प्रति she जो was saying a प्यार है oneness is उसके that आधार से ही हम सब एकता we में have बन these सकेंगे। qualities. और सुदेश दीदी ने Body एक बात बताई consciousness थी, वो is that कि these स्मृति are my ये है qualities. कि मेरे में ये सब And गुण हैं। arrogance is that you need to देवभान accept माना कि my qualities. ये मेरी So विशेषताएं you हैं, can imagine it was very और rich, अभिमान and है कि also the cultural program was one of the आपको most मेरी unique ever, विशेषता है उसको because स्वीकार करना है, मतलब मेरी ही Liz, who विशेषता को was one of स्वीकार the करना है। MCs, she got up and said, well, we don't have कल्चरल any प्रोग्राम items. जो रहा था बहुत बढ़िया था। And then we had the most beautiful, most hilarious 1 hour लिज where जो everybody एमसी just थी got उसने up कहा कोई आइटम spontaneously, नहीं one है, तो after the next, without any inhibition, लेकिन उसके and बाद just एक shared घंटा a बहुत story ही or a joke or something. And it was अच्छी just so बातें हो beautiful. रही, किसी So ने just कुछ to भी give you a taste of लज्जा नहीं की, so शर्म नहीं thank you, किया, Sister लेकिन कुछ Jayanti. न Sorry कुछ not to आकर के take any शेयर of your किया, तो बहुत ही रिच No रहा। problem. over to you. Thank you. तो ये सब आपको Thank you थोड़ा very सा much. चखाने के लिए हमने सारी बातें बताई, And yes, टेस्ट time करने seems के to be लिए। flying very, very fast. And all the सभी Amrit को ओम Murlis शांति। and the Sakar Murlis, exactly as we समय need, बहुत how जल्दी we बीतता need जा them. रहे हैं। And so this अव्यक्त time, मुरली, Baba's साकार Murli, मुरली, talking जो about बाबा life forms. This बता was the रहे हैं second हमको जो चाहिए invitation. ऐसे ही बता And रहे so हैं। it's interesting that Baba first brought us to the point of the three बाबा की forms मुरली and then 3 later on बातें, the five 3 forms. स्वरूप की The बातें three बता रही थी forms कि are actually very, very तो significant. पहले बाबा ने So बताया the first form, the 3 Brahman, बातें, the 3 second स्वरूप, form, the ब्राह्मण, angel, and the और third उसके बाद form, 5 the स्वरूप का। deity. And
तो पहला तो स्वरूप था ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप और तीसरा स्वरूप देवता रूप। और बाबा का ब्राह्मण स्वरूप का परिभाषा थी ब्राह्मण माना विजयी। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग था। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है तो हमारी बहुत अच्छी तरह से हमें कैसे ये स्पिरिचुअल लाइफ का मजा लेना है। तो बाबा ने ये बताया कि अगर हम ब्राह्मण हैं और हमें याद रहे कि हमारे लिए विजयी तो निश्चित है। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं, ऐसे नहीं कि क्षत्रिय फरिश्ता बनते हैं। तो ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता ही देवता बनते हैं। क्षत्रिय को कोई जगह नहीं दी जाती है। ऐसे बाबा को मालूम है हम कैसे किस प्रकार के युद्ध के द्वारा पास करते हैं। ब्राह्मण होने के कारण मेरे पास सारा ज्ञान है और मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मेरी बुद्धि मेरे को कहती है क्या करना है। मेरी मन में बहुत सारे तूफान आते हैं, उसमें मेरे फीलिंग्स इमोशंस बीच में आती हैं और मुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो उस समय हमारी खिंचातान होती है। एक मेरा विवेक एक तरफ ले जाता है, मेरा मन दूसरी तरफ ले जाता है। और अगर मैं उस बीच में मैं फंस जाती हूँ, मेरा फीलिंग्स इमोशंस मुझे खींच रहे हैं, तो उसमें गलती होती है। और गलती होने के कारण माया को वो चांस मिल जाता है बीच में घुसने का। मैं जब भूल जाती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार विजयी है, और उस स्मृति से बाबा से मैं ये शक्ति ले सकूं, तो मेरी स्मृति जब कमजोर हो जाती है, सॉलिड न होने के कारण मैं जब भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये कमजोर हो जाते हैं, तो ये स्मृति मुझे और दिशा में ले जाती है। भगवान के साथ मैं कनेक्शन नहीं रख सकती हूँ, भगवान से मैं शक्ति और प्राप्ति नहीं ले सकती हूँ, अपने में खाली महसूस करती हूँ। फिर माया को चांस मिल जाता है, मेरी गलती होती रहती है, फिर उसमें मैं जैसे फंस गई हूँ ऐसे लगता है। स्मृति से फिर बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाता है, उसमें शक्ति नहीं ले सकते हैं, फिर हमारी कमी होती है। तो ये सारा सीक्वेंस एक के बाद दूसरी बात कैसे होती रहती है। बाबा ने कई बार ये बताया है कि कैसे हमारी स्मृति भूल जाने से, कमजोर होने से कैसे कई प्रकार की गलतियां होती है। तो जब भी मैं ये याद रहूं कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो मुझे बाबा की सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार है। न सिर्फ कोई शक्ति, लेकिन हर शक्ति के ऊपर अधिकार है। लेकिन जब मैं भूल जाती हूँ कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, तो उस समय कमजोर होने के कारण अपना अधिकार लेने के बजाय मैं अधीन हो जाती हूँ और मैं भगवान से फिर भीख मांगती हूँ, मुझे शक्ति दो। तो बाबा मुझे थोड़ा तो देंगे, लेकिन मैं ले नहीं सकती हूँ। आप कमजोर होने के कारण मैं ले नहीं सकते हैं। ब्राह्मण का बहुत ही सुंदर डेफिनेशन, परिभाषा बताई बाबा ने। तो अगर मैं उस स्मृति में रहूं तो मैं खुश रह सकेंगी, अपना ब्राह्मण जीवन का मजा ले सकेंगी। लेकिन जब मैं भूल जाती हूँ तो फिर मेरे कॉन्फ्लिक्ट होती है। पहले अपने अंदर ये खींचातान होती है, फिर विकारों के साथ भगवान के पास से और सारे ट्रेजर्स लेने के बजाय प्यार, पवित्रता, सच्चाई, सत्यता, शांति, वो सब महसूस करती हूँ।
लेकिन जब मैं स्मृति भूल जाती हूँ तो ये बातें मैं अनुभव नहीं कर सकती हूँ, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है, मेरे अंदर गुस्सा, लोभ, अभिमान, काम, ये सब बातें आ जाती हैं। वो मुझे प्रभावित कर लेती है, मुझे खींच लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ये नहीं हो, लेकिन याद करो कि आप कौन हो और अपना अधिकार ले लो, सर्व शक्तियाँ ले लो। तो शक्तियाँ जो लेते हैं वो जिस समय यूज करने की जरूरत है उस समय हम यूज कर सके हैं। ऐसे नहीं कि समय बीत जाता है, परिस्थिति बीत जाती है, उसके बाद हम याद करते हैं कि ये शक्ति मुझे यूज करनी चाहिए थी। जब परखने की वो हम परख नहीं सकते हैं तभी हमारी गलतियां होती हैं। फिर बाद में ख्याल आता है मुझे ऐसे करना चाहिए था, लेकिन वो तो समय बीत गया और गलती हो जाती है। फिर बाबा ने परिभाषा बताई, फरिश्ता कौन है? जो भगवान का संदेश दे सकते हैं और जो डबल लाइट रह सकते हैं। एक तो ये अपना लाइट का ड्रेस, कॉस्ट्यूम, और हमेशा हल्कापन रहे। जस्ट याद करो हमारा जब संस्कार, स्वभाव, संबंध, संपर्क सब में हल्कापन है, कोई भी बोझ नहीं है, तो उस समय आप क्या अनुभव होता है? तो बाबा हमें वो स्थिति का अनुभव कराना चाहते हैं कि जब हम हर बात में एकदम हल्के हैं। जिम्मेवारी तो है जो मुझे संभालनी है, लेकिन उसमें मुझे कोई बोझ की महसूसता नहीं होती है, लेकिन हल्केपन से ही उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे संबंध संपर्क हल्केपन वाला है, तो मैं औरों का भी सहयोग ले सकती हूँ। जो भी मेरे आसपास है वो भी बड़े दिल से मुझे अपना सहयोग देंगे और जो कार्य करना है वो सहज ही हम कर सकेंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर बोझ की महसूसता करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं, ये लोग मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, इस तरह से संकल्प चलते हैं, तो ये सारे व्यर्थ संकल्प पहले से भी हम पहले से भी गलत तो उस स्थिति में हम सरल स्वभाव है, इजी है, सबका सहयोग सहारा जो है। अगर मैं भारीपन में हूँ तो जो मुझे सहयोग दे रहे हैं वो भी मैं ले नहीं सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है कि वो मुझे सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने ही बातों में इतनी फंसी हुई हूँ जो उनका सहयोग नहीं ले सकते हैं, और वो सहयोग देने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन मैं उसको गलत समझ लेती हूँ। तो बाबा पूछते हैं आपको क्या बोझ उठाने का आदत है? वो बोझ को छोड़ दो, क्योंकि भगवान आपके साथ है और भगवान की मदद से सब कुछ सहज और संभव हो जाते हैं। तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ और ये अनुभव करो कि भगवान के साथ में कैसा महसूस होता है। हम सिर्फ निमित्त मात्र सब कुछ करने वाले हैं। बाबा ने बहुत सारी डिटेल बताई, मैं और मेरापन जो आता है उसमें। पहले तो बाबा ने बताया आत्म अभिमानी स्थिति की बातें, हमारे टाइटल्स जो बाबा ने दिए हैं, कितने सारे टाइटल्स दिए हैं सोमान में रहने के लिए, तो उसका मौज लेना, मौज का अनुभव करना, वो तो सबसे ऊंची स्थिति है। लेकिन उसके ऑपोजिट विरुद्ध स्थिति है देवभान की। तो देवभान में हम इस शरीर में ही फंसे हुए हैं कि हम स्त्री है, पुरुष है, हमारी आयु क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जो बाहर की जो आइडेंटिटी, बाहर की जो चीजों की आइडेंटिटी है वो तो हम सहज ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो
आत्मा चमक रही है, उसको अपनी स्मृति है कि मैं कौन हूँ, और अभी ऊंची स्थिति में रह सकते हैं योग के द्वारा। बाबा ने कहा योग में तो आप अनुभव करते हो, लेकिन सारा दिन वो क्यों नहीं रहता है? तो इसलिए हमारा सोच, हमारा बोल और कर्म में अंतर आ जाता है। अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति करते हैं तो ये सब बातें छूट जाती हैं। लेकिन जो अभिमान की बात बाबा ने बताई, देह का अभिमान, देह का अहंकार की बातें जो बताई, मैं अच्छा योगी हूँ, मेरी अच्छी विशेषताएं हैं, मेरे अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ बाबा के लिए, मैं बाबा के लिए ये कर रही हूँ, ऐसे ख्यालात जो आते हैं, जो मैंपन की बातें, अपना अहंकार आ जाता है। तो उसमें मैं ये महसूस नहीं कर पाती हूँ कि जो भी मेरे में अच्छाई है वो बाबा की देन है, उसके वरदान द्वारा मुझे मिले हुए हैं। और भगवान ने मुझे ये बहुत ही अच्छा मौका दिया है उनका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि करण करावनहार कौन है। कराने वाला मेरे द्वारा करा रहे हैं, औरों के द्वारा भी कराए हैं। तो मैं अपने को पूछती हूँ, क्या मैं अपने आप ये कर सकती थी? राजयोग से पहले मैं ये कुछ कर सकते थे? मैं अपने लिए तो जानती हूँ कि मैं ये कुछ नहीं कर सकती है। मैं लोगों के साथ आध्यात्मिकता की बात भी नहीं कर सकती थी। बहुत ही जैसे लज्जा करती थी। छोटा सा ये चक्कर ग्रुप था जिनके साथ मैं बात करती थी। मैं तो बहुत दूर भागती थी जब भाषण करने की बात होती थी। तो आज जो मेरे पास सब कुछ है वो बाबा ने मुझे दिया है। तो मैं ये न समझू कि ये मेरी विशेषता है, मैं ये कर सकती हूँ। ये सब मेरा अभिमान है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, बहुत सारी गिफ्ट्स दी है। तो मेरा रिटर्न है कि मैं ये सब बातें उस तरह से यूज करूं जैसे भगवान चाहते हैं। अगर मैं समझू मेरा है, मैं ही ये कर सकती हूँ, तो उसमें मैं फंस जाएंगी। और मैं उस गिफ्ट का जो बाबा की तरफ से देन है उसको मैं यूज नहीं कर सकेंगी। भगवान ने मुझे यहाँ तक ऊंचा उठाया है कि मैं फरिश्ता बन रही हूँ। तो ये सिर्फ भगवान के निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन करके सेवा करने से और सबके साथ शेयर करने में, जैसे मैं शेयर करती हूँ तो मुझे वो विशेष वो वरदान वापस मिलते हैं। बाबा ने कई साल पहले कहा था, ऐसा समय आएगा जब सब कहेंगे कि मुझे मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। अभी आप उनको निमंत्रण देते हो, लेकिन वो बहाने देते हैं, मैं नहीं कर जा सकती हूँ। बच्चे के कारण, अपने माँ बाप के कारण कोई ना कोई बहाना निकलता है कि हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा कि मैं बाबा के निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे यूज कर रहे हैं, जो भी यूजफुल है उसको शेयर करने के लिए। तो उस समय मुझे महसूस होता है कि ये मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं। दादी प्रकाश मणि ने जब 49 इयर्स की उम्र में उसने सारा अपने ऊपर लिया, कैसे किया? बहुत सुंदर तरीके से किया। सबसे ज्यादा समय ऐसा लीडर रहा जो इतने सालों तक उसने सेवा की। जनवरी 69 से 2005 तक उसने जो सेवा चलाई। तो एक लीडर ने बहुत सालों तक इतनी अथॉरिटी और शक्ति से जो ये यज्ञ चलाया, ये कैसे किया इतना सुंदर तरीके से? हमेशा कुछ भी कहेंगे तो दादी अपनी अंगुली ऊपर करती थी कि वो ही कराने वाला है।
तो ये दादी हमेशा अपने को निमित्त समझती थी कि मैं तो सिर्फ करने वाली हूँ, बाबा करा रहे हैं। तो उस समय हम उस अभिमान को छोड़ दें कि ये मेरी विशेषता है, तो फिर भगवान के साथ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। बाबा ने अच्छी बात बताई कि देवता जो लेने वाले हैं उनके बजाय हम देवता बन जाते हैं जो देने वाले होते हैं, जो दाता बन करके देते रहते हैं। तो मैं सिर्फ जैसे वायर ही हूँ जो बाबा से ले रही हूँ और औरों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब हमें इतने सारे वरदान सभी के द्वारा मिलते हैं, सभी दिशाओं से मिलते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली अपने को महसूस करते हैं। फिर बाबा ने देवता की बात बताई। जो देवताओं के ऊपर श्रृंगार लगे हुए हैं, वो अपने दिव्य गुणों के गहने हैं। जब हम तीन स्वरूप का एक्सपेरिमेंट करने से पूरा करते हैं, उसके बाद पहला तो परफेक्ट फॉर्म ब्राह्मण का, फिर अपना फरिश्ता स्वरूप और फिर अपना देवता स्वरूप। तो देवता रूप में तो कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पहने होते हैं, कितने गहने पहने हुए होते हैं, लेकिन देवता माना जिसमें सर्व गुण होते हैं। तो जो भी हमारे साथ संपर्क में आते हैं उनको वो दिव्यता दिखाई देती है, उनको वो गुणों का खजाना दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा हमको देवता बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि हम बड़े दिल वाले, उदार दिल वाले बन सकते हैं और देते चले। फिर बाबा ने बताया कैसे जो राज्य करने वाले गद्दी पर बैठते हैं तो उसको वो तिलक देते हैं, उसको ताज देते हैं। जैसे हमने भी कोरोनेशन सेरेमनी देखी थी किंग चार्ल्स की, तो वो लोग स्पेशल ऑयल से उनको वो मस्तक पर इतना सेक्रेड होता है जो किसी को दिखाया नहीं, उसके आसपास वो स्क्रीन लगाया ताकि कोई देख न सके, सिर्फ जिनके ऊपर लगाते हैं और लगाने वाला वही होता है। तो बाबा भी हमारे ऊपर वो तिलक लगाते हैं ताकि हम ऐसे ही चमक सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अपना ताज याद रखो कि ये जिम्मेवारी का ताज है। कई बारी कई आत्मा जिम्मेवारी लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, कोई और भले करे। लेकिन मैं ये समझू कि ये तो मेरा भाग्य है कि ये मैं कर सकती हूँ। अगर मैं आज उसको रिजेक्ट करती हूँ तो फिर बाद में कब ये भाग्य मिलेगा। अगर मैं छोड़ देती हूँ तो औरों का विश्वास में गवा बैठती हूँ, फिर वो दोबारा सोचते हैं मुझे कोई जिम्मेवारी देने के लिए। अगर आज मैं जिम्मेवारी छोड़ देती हूँ तो मुझे कल भले जिम्मेवारी मिले या ना मिले, तो उस समय हमारी वो आदत पड़ जाती है, हम पहले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जिम्मेवारी का ताज पहनना, विश्व सेवा का, या खुशी खुशी से करना कि बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है तो वो सब कुछ कराएंगे। मुझे तो करना नहीं आता है, उसको आता है। टीचर्स मीटिंग आज में हम बता रहे थे, इंडिया तो रियली कल्प वृक्ष में बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं। इंडिया में सभी जगह पर सेवा हो गई है। और आज कल जो प्रेसिडेंट, हम जब लास्ट टाइम उससे मिली थी आशा बहन के साथ दिल्ली में नवंबर में, तब बहुत अच्छी बात सुनाई। तो कहती मैं रोज बाबा को पूछती हूँ, आपने मुझे इस जगह पर बिठाया है तो अभी आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे तो नहीं मालूम है, आप मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है। तो विचार करो,
कलयुग में वो आत्मा ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन पर, लेकिन उस समय वो सिर्फ बालक बन जाती है। बाबा मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आपको मुझे बताना है मुझे क्या करना है। तो हमारे लिए भी, विश्व सेवा के लिए भी ये जिम्मेवारी न सिर्फ एक देश के लिए लेकिन सारे विश्व के लिए है कि मैं बाबा को रोज सुबह पूछूं, बाबा मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपकी संतान हूँ, आप मुझे बताओ कि आज मुझे क्या करना है, तो मैं वो करेंगी। जो आप चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अपने को मैं फ्री रखती हूँ, आप मुझे सिखाओ जो सिखाना है वो। तो ऐसे जिम्मेवारी का ताज पहनना और फिर स्मृति का तिलक कि भगवान मुझे रोज वो तिलक लगाते हैं अमृत वेले। जब भी मैं अपनी आंख खोलती हूँ तो भगवान मुझे वो तिलक लगाते हैं कि आप ईश्वर के संतान हो, कि आपने आध्यात्मिक जन्म लिया है, आप ये हो। बाबा ने कहा कि ये याद करना तो बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे बाप टीचर सतगुरु को याद करते हो, ऐसे ब्राह्मण फरिश्ता देवता याद करना भी बहुत सहज है। इस हफ्ते की मुरलियाँ जो चली है, बाबा हमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि कैसे माया कितनी शक्तिशाली है। बहुत बारी बाबा ने याद दिलाया। और दूसरा कि मैं बिल्कुल पार हो जाऊं और माया जीत बनूं आत्म अभिमानी स्थिति से। ये याद रखो कि आप कौन हो। इतने सारे टाइटल्स जो बाबा ने दिए हैं उसको याद करो और उस स्मृति से आप बाबा से मदद ले सकेंगे। और आत्म अभिमानी स्थिति से ये बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना। और दूसरी बात जो ब्रह्मा बाबा की बात है कि वो एक ही बच्चा है भगवान का, ये बहुत अच्छी बात निकली थी कि ये एक मुर्गी बच्चा है, विशेष आत्मा भगवान की संतान, और बाकी सब उनके ये सिजरा है जिसमें सभी आत्माएं, बच्चे, पोत्रे, दोत्रे पोत्रे, एक बच्चे से इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसमें से कैसे ये झाड़ बढ़ता जाता है। एक तो ब्रह्मा बाबा एक ही बच्चा, और फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के आधार से कहते कि वो हमारी माता भी है, शिव बाबा की पत्नी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही एक माता पिता बन करके हम बच्चों की कितनी परवरिश करते हैं, हम लोग हमको जन्म दे करके परवरिश करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का रोल कितनी अलग अलग तरीके से बाबा ने बताया। हम कहते हैं फॉलो फादर, तो दो फादर्स की बात करते हैं, एक तो निराकार बाप और साथ साथ ये साकार बाबा। एक तो निराकार बाप सारे मनुष्य आत्माओं का, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा जो सारे सृष्टि के माता पिता। आत्माओं के साथ एक निराकार का ही कनेक्शन, और कैसे हम भाई बहन एक एक परिवार के बनते हैं जब उसको हम माँ बाप की रीति से याद करते हैं। तो साकार मुंडिया इस हफ्ते की जो मैं देखती तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से ये बाबा बता रहे थे कैसे ब्रह्मा माता पिता के रूप में हमारी पालना करते हैं। और आज की मुरली में जो बाबा ने बताया कि भारत में माता पिता का कनेक्शन है, लेकिन और देशों में सिर्फ बाप की स्मृति रहती है, गॉड फादर को ही याद करते हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। गॉड फादर का महत्व और सब धर्मों में भी बहुत निकला है।
तो ये साकार मूल्यों से और अब लास्ट अव्यक्त take मूल्य up से on ये this सब one बातें point देखी। that has been kind of revolving कुंती बहन को बहुत in बहुत a few शुक्रिया। conversations, and that is when Baba said that there are Mayavi yogis and Mayavi एक बात jnanis. उठाती हूँ And जो बाबा ने कहा, so actually the question is that if I find myself मायावी in a योगी और relationship ज्ञानी with such a आत्माएं, soul who has such an attitude and behavior, then what should I अगर do? मैं ऐसी आत्मा के साथ संबंध में आती हूँ And जिनका part ऐसी two to that is वृत्ति रहती how है can I, if जो it's coming मायावी to me, योगी how और can I ज्ञानी है, तो मैं क्या actually करूं? discern that this is Maya? Because after so many years, मुझे कैसे मालूम it's still पड़ता है attacking कि us. ये So माया है? what are we not doing इतने सारे सालों के enough बाद to strengthen our discernment? ये फिर भी हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, तो हम क्या नहीं कर रहे हैं अपने परखने की शक्ति को, जो हम परख नहीं सकते हैं कि ये माया है। And it's not so many in the Brahmin family. There's a few जब मैं here दूसरों and में there. देखती हूँ कि ये मायावी So they योगी या say ज्ञानी that, है, I'm right. मेरे ब्राह्मण परिवार में भी They're इतने नहीं understanding हैं, लेकिन Jnani कुछ is आत्माएं ऐसी correct, हैं when in fact हमेशा जो the कहते हैं कि way मैं Baba राइट हूँ, speaks about it is तो वो actually a bit समझते हैं कि मैंने बिल्कुल सही रीति से ज्ञान को was what समझा है, others say. But when it comes लेकिन with this जो Atma's बाबा कहते हैं वो तो कुछ अलग रीति से है। तो मैं if I'm lucky, किसके whenever ऊपर I'm विश्वास impressed करूं? by this जो individual, बाबा कहते हैं वो राइट है, या ये आत्मा जो कह रही है वो राइट है? तो अगर मैं किसी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कई बारी आत्माएं बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छी तरह से, एकदम इतना जोर से, फोर्स से बोलते हैं जो हम समझते हैं कि ये राइट है। लेकिन अगर हम रोज अमृत वेले बाबा की ही याद में बैठते हैं, मूल्य को अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, तो बाबा ने जो कहा है उसके आधार से उस आईने में मैं देख सकती हूँ। फिर मैं डिसाइड करूँ कि मैं इस आत्मा के फॉलोअर बनूं या मैं बाबा के साथ रहूं। तो उस समय हमें सही तरीके से जवाब मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम खुद ही जैसे माया में फंस गए हैं, लेकिन हम परख नहीं सकते हैं कि हम माया में फंस गए हैं, हमारी बुद्धि अच्छी है, मेरी बुद्धि से मुझे अच्छी तरह से ज्ञान समझ में आता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उस समय कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जब मुझे मालूम पड़े कि नहीं कुछ हुआ है। जब कुछ ऐसी बात होती है जो ठेस लगती है, तो उस समय हम फिर अपने अपने को पूछ सकती हूँ कि मैं इस दिशा में क्यों हूँ, इस स्थिति में क्यों हूँ। जब हम अपने को देख करके सोचते हैं, ये प्रश्न करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये माया की बात आ गई है। कई ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैं भगवान को सबसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। हर एक पुरुषार्थी है, कोई भी संपन्न तो बने नहीं है, तो मैं भी कैसे कह सकूं कि मैं भी परफेक्ट योगी हूँ। तब मैं यहाँ नहीं होती। हम सब तो पुरुषार्थी हैं, तो हमें वो नम्रता होनी चाहिए कि बाबा ही टीचर है, बाबा वो दरवाजे सेवा के खोल रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं और कोई कुछ कर न सके। तो कई बारी गिरते हैं, उसमें जो ठेस लगती है, चोट लगती है, तो उस समय आत्मा में जैसे जागृति आती है कि ये सब माया है। क्या ये यही तरीका है? ये तो कभी भी हो सकता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि बुद्धि इतनी फंस जाती है, जो ट्रोमा है उसमें है, जो वो परख नहीं सकते हैं। मायावी बुद्धि ऐसी हो गई है, तो ये समझते हैं कि वो बुद्धि उसमें फंस गई है कि
मुझे ही सब कुछ मालूम है, मुझे ही अच्छी तरह से मालूम है, मैं जो ज्ञान सही तरीके से समझ सकती हूँ। तो माया ने मेरी बुद्धि के ऊपर वार कर दिया है और वो पकड़ करके बैठी है और मैं ये देख नहीं सकती हूँ। लेकिन जब कुछ ऐसी बात होती है जिसमें बहुत चोट लगती है, तभी हमें संकल्प आता है कि ये तो माया ने हमें पकड़ लिया है। कभी अहंकार आ जाता है तो वो किसी और का सुन ही नहीं सकते हैं। मुरली में बाबा क्या कहते हैं वो भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए तो इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। जब भी उनको दर्द होता है कि जो उनको करना चाहिए वो नहीं होता है, जो सहयोग वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तभी वो अपने को पूछते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। कभी कभी थोड़े से अभिमान में भी ऐसे हो जाता है, लेकिन कई बार तो एकदम आत्मा फंस गई है, जकड़ गई है माया के, माया से तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। Thank you. तो So just उसमें last part बहुत of ही this question then. ऐसी पावरफुल चीज कुछ Is ऐसी another होनी चाहिए Brahmin जिसके आधार trying से वो to समझ help सकते हैं कि ये free कुछ the हुआ है। soul? तो Is अभी it ये our लास्ट प्रश्न है, responsibility as a Brahmin brother or sister to, क्या कोई और or we should ब्राह्मण just let इस them go आत्मा through their ऐसी आत्मा motions? को मदद करने के लिए मदद कर सकते हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि ऐसे हम किसी को देखते हैं तो उनको मदद करें? कई बार होता है कि कईयों ने उनको मदद करने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग उससे हट नहीं सकते हैं, हमेशा समझते हैं कि मैं ही राइट हूँ, तो किसी का सुन भी नहीं सकते हैं। अगर किसी में हिम्मत है, समय है और उसको समझाने की कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारी हमारा कर्तव्य है किसी को मदद करना, लेकिन अनुभव से मैं जानती हूँ कि कईयों ने All right, thank you so much for that. Gentlemen, can we just go back to the loving कई and बार detached ऐसे from मालूम every पड़ता other है कि soul ड्रामा से ही into हमको समझ में loving आता to है। Baba and detached from everyone? And maybe in the English, we are just maybe न्यारा looking और for the प्यारा words. जो बाबा कहते हैं, We बाबा say, के साथ I love प्यारा you, रहना और but सभी से loving, but डिटैच you make the रहना। mistake of being detached while being loving. You miss out on being as detached बाबा as ने you are कहा क्या loving. आप न्यारे और प्यारे हो? Um, तो आप जितना प्यारा रहते हो उतना न्यारा नहीं रहते हैं। तो ये एक दो बारी पढ़ना पड़ा समझने के लिए कि बाबा कहते हैं हम न्यारा रहते हैं या प्यारा रहते हैं। तो न्यारा और प्यारा दोनों साथ जो होना चाहिए वो हम नहीं रह सकते हैं। जितना हम न्यारा है उतना ही प्यारा होना चाहिए, और न सिर्फ भगवान के साथ प्यारे, देह के संबंध, देह के साथियों सभी से न्यारा रहना। अगर मैं न्यारा रहता हूँ तो फिर मैं भगवान के साथ पास उनका प्यार ले सकती हूँ, और फिर मैं ऐसे निमित्त आत्मा भी बन सकती हूँ जो भगवान से प्यार लिया है वो दूसरों के साथ शेयर करना। बाबा ने कई बारी बड़े परिवार की बात की है। हम इतना न्यारा रहे जो हम किसी के पास कुछ एक्सपेक्टेशन न रखें, और भगवान का प्यार भी उन्हों के साथ। okay, thank you. And then somebody had this question भगवान about को the four पहचान paragraphs. सकूं, भगवान से नजदीक आ सकूं। An angel means farishta means no rishta. So this अमर person जीवा was का जो asking बात बाबा ने that, उठाई like थी, what happens when either you get old or you get sick or something happens, you've broken all your connections with your relatives. And हम here you're बूढ़े होते asking, हैं, बीमार होते हैं, it कुछ हो seems जाता like you've है nowhere to go. हमारा, So और what सब would you recommend in such a situation? देहधारियों से संबंध तोड़ दिया है, फिर हम बीमार हैं, कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें?
हम अपने को जानते हैं अपने तो बाबा ने बुद्धि के संबंध की बात बताई न देह के भान से देह की स्मृति से अपने को हटा लेना। तो ऐसे नहीं है कि हम फिजिकली किसी से संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हटा देवे। फिजिकल कनेक्शन तोड़ने की बात बाबा नहीं कह रहे थे। अगर मैंने फिजिकली सारे संबंध तोड़ दिए हैं और मैं अकेली हूँ तो बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। लेकिन अगर मेरा बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है और जो बाबा ने कहा है न्यारा प्यारा रहना, और ऐसे मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो मैं कहीं किसी से भी दूर नहीं गई हूँ और नजदीक ही हूँ, तो उसका मदद मुझे मिल सकती है। So this thing about dropping, being wrong to drop responsibilities. So is it not the right of an individual whether they should be able to drop their responsibility or not? Is it always wrong to drop responsibility? Because one knows for themselves, right, where they're at. कोई जिम्मेवारी हमें मिली है तो क्या हम जिम्मेवारी को छोड़ नहीं सकते हैं? What is your क्योंकि हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। तो अगर कोई जिम्मेवारी छोड़ देते हैं तो क्या हमें कोई हक नहीं है जिम्मेवारी छोड़ने का? तो कब जिम्मेवारी उठाना, कब जिम्मेवारी को छोड़ देना? अगर मुझे कोई पूछते हैं जिम्मेवारी लेने के लिए और मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं समझूं कि ये बाबा मुझे दे रहे हैं, ये मुझे मौका मिल रहा है, मैं ले रही हूँ वो जिम्मेवारी, और उस बीच में कुछ होता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, अगर मेरा टांग टूट जाता है, तो जो निमित्त है जिसने मुझे जिम्मेवारी दी है वो भी जिम्मेवार है, तो उनको समझाओ कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो उस समय ये ठीक है। लेकिन जब मैं ठीक से बता नहीं पाती हूँ, लेकिन वो कर भी नहीं रही हूँ, बाबा की संतान होने के कारण मैं अपने अंदर तो वो समझ सकूं कि क्या हो रहा है। भले कोई फिजिकल बीमारी या फिजिकल कुछ हैंडीकैप हो, लेकिन कई बारी दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो हम समझ सकते हैं। तो हम कहें कि मैं अपने साथ समय बिताना चाहती हूँ, बाबा के साथ समय बिताना चाहती हूँ, तो किसी और को ढूंढो जो मदद कर सके। जब मैं अपने को इतनी शक्तिशाली महसूस करूँ तब मैं कुछ करेंगी। लेकिन कहीं बीच में ही छोड़ देते हैं कुछ एक्सप्लेन किए बिना, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम कई बारी थोड़े समय के लिए ही हम वो जिम्मेवारी छोड़ देते हैं, फिर हम वापस उठा लेते हैं। तो मैं तो अपने को तो समझ सकती हूँ। अगर मुझे वो समय चाहिए, वो अंदर से स्ट्रेस की महसूसता है, उसको छोड़ने के लिए मैं In the थोड़े blessed समय के लिए messages कहूँ कि as मुझे well, and अभी in इस जिम्मेवारी से हटना है। in English it comes across as nature and nature. So this is somebody's question in the chat. Would you like बाबा to ने answer? A स्वभाव complete renunciate is one whose thoughts, nature, sanskars, and actually swabhav, which is nature, are like those of the Father. Baba used the word swabhav and nature, but Baba's तो बाबा ने स्वभाव और नेचर दोनों इंग्लिश में और हिंदी में कहा था। तो ये जैसे
हमारे लिए अंडरलाइन करने के लिए कि हमारे स्वभाव की बात पापा बता रहे थे। हम कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है, तो इसलिए बाबा ने दोनों तरीके से बताया कि ये स्वभाव की बातें होती है कि स्वभाव को हम बहाना बना लेते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, तो मेरा स्वभाव ईश्वर की स्वभाव जैसे होना चाहिए कि भगवान ने हमें उन जैसा बनाया है। फिर बाबा ने अपनी मुरली में ये भी बताया कि हमें ईश्वर की गुण का हमें मूर्त होना चाहिए। तो भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं, वो हमारे में होनी चाहिए। अगर मैं ये बातें मन में रखती हूँ तो मेरे पुराने स्वभाव की बातें खत्म होती जाएंगी Lovely. और मेरा स्वभाव ईश्वर के जैसे Share बनता about, जाएगा। God forgiving us for our mistakes. So is it that he forgives? Well, is it that he doesn't see भगवान us हमें making हमें mistakes? हमारी गलतियों को Which is माफ कर why देते हैं, तो he क्या doesn't need to forgive in a sense. क्या ये वो हमारी गलती को गलती नहीं देखते हैं, इसलिए वो हमें माफ कर He just सकते doesn't कि see माफ the करने की mistakes that we जरूरत ही have, नहीं है। and therefore there's nothing to forgive. वो बाप है इसलिए वो And in माफ नहीं करते the हैं, Murlis we have माफ this कर देते हैं, chant, या what ड्रामा is में कोई Krishna गलती ही नहीं है इसलिए वो माफ नहीं for करते how हैं। many years? And he keeps saying, sweet children, sweet children. I mean, he just does not focus on our bitterness. बाबा कितने सालों से हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, रोज कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे, और हमारे अंदर जो कड़वाहट है उसको वो देखते भी नहीं है। Other than that, तो भगवान को ऐसी क्या बात है जो हमेशा उसको कल्याणकारी में, कि भले वो तो भगवान है कि हमेशा कल्याणकारी है, कोई गलती देखते ही नहीं है, तो भगवान ने क्या समझा है जिस आदर से? गॉड तो वो है जो सब कुछ देखता है, जानता है, समझता है। वो जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कि सत्यता और झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो भी जानता है। लेकिन लेकिन लोग आजकल ये चाहते हैं कि ब्लैक और व्हाइट पसंद नहीं करते हैं, कि बीच वाला ही चाहिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चलता ही रहता है, जैसे होता है वैसे चलता रहे। तो उस स्थिति में हमारी परख की कमी है कि पाप पुण्य क्या है, हमारे में हमारी समझ में नहीं आता है कि सही गलत क्या है। भगवान तो बहुत ही दयालु है, कृपाली है, और ऐसे नहीं कि भगवान माफ नहीं करता है। भगवान देखता है कि इसके अंदर बहुत ही गहरा रियलाइजेशन है और अपने को परिवर्तन करने का बहुत ही दृढ़ संकल्प है, तो फिर सहज रीति से वो हमें मदद करता है, हमारा पुराना संस्कार खत्म हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं ओके, आपने ये महसूस किया है तो मैं आपको दूसरा मौका देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दो बारी बाबा कहते हैं, लेकिन जब भी समय है, संगम युग में टाइम है, तो भगवान हमको माफ कर देता है, कि भगवान देखता है कि मुझे परिवर्तन करने की इच्छा है। तो भगवान देखते हैं कि मैं गलती घड़ी घड़ी करती रहती हूँ, महसूस कुछ नहीं करती हूँ, मैं परिवर्तन नहीं करती हूँ अपने को, तो भगवान हट जाएगा, कहेंगे ये तो आपकी भावी है, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको तो घड़ी घड़ी वही गलती करनी है। अगर हम कुछ करने के लिए तैयार है, अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार है, तो भगवान हमें मदद करेंगे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम सब कुछ ठीक तरीके से करते चलें। What's the difference between Dehi Abhimani and Atam Abhimani? सो कॉन्शियस एंड बॉडी कॉन्शियस, इसमें अंतर क्या है? सॉरी, देही अभिमानी एंड आत्म अभिमानी।
The soul is detached from the body. that they and dehi, I'm in the body, but yet I'm not A stage of this, sokon and in that आत्म awareness, अभिमानी स्थिति, I am the one देही who अभिमानी, is देह being के अंदर होते हुए भी देह का भान नहीं है living soul. And so I think maybe it's connected with कि this. मैं When I'm देही in the आत्मा, body, चैतन्य I आत्मा am इस देह के this, अंदर हूँ। I am in this chariot, dehi, I am the driver in देह this में होते chariot, हुए I am भी the soul. आत्म अभिमानी स्थिति में That तो awareness कहेंगे कि देही अभिमानी स्थिति है, Atam Abhimani, no connection with the body at that moment. लेकिन जब परम धाम में बैठी हूँ, परम I'll धाम say की that the स्मृति story है, seems तो to उस समय connect with आत्मा का recognition. कोई भी शरीर के साथ What कनेक्शन नहीं है। determines our recognition? My purity, my love, my faith, भगवान को परखने से अपना Okay. सब कुछ आप खत्म, पाप खत्म कर सकते हो। तो किस आधार से हम कहें कि भगवान को हमने Okay, पहचाना है? I'll stop there. हमारी प्योरिटी, हमारा प्यार, हमारा विश्वास भगवान में। Gentlemen, do you want to just share a little bit about तो your अभी हम purity यहाँ and खत्म करेंगे, faith, and then we can end in a few minutes. प्रश्न तो आते रहेंगे। very beautiful scenes in Dallas. They have not न्यूयॉर्क just में आपने क्या centers किया in था? a commercial area with the residents on top, डैलस space में of about 100 people to न sit सिर्फ there, and then सेंटर we have कमर्शियल जगह में so time really flows 100 जगह, 100 जने की जगह है, जहाँ पर बहुत बढ़िया सेंटर में 18 साल के बाद गई वहाँ पर, an add-on और समय कितना जल्दी बीत जाता है मालूम नहीं पड़ता है। like a whole new building that's been added on. जो पहले सेंटर था उसमें एडिशन किया, एक्सटेंशन बनाया और छोटा सा हॉल बनाया जहाँ 100 जने बैठ सके, 150 जने बैठ सकते हैं। So that was lovely. And here in Boston, डैलस में भी एक तपस्या धाम जैसा रिट्रीट सेंटर जैसी जगह है। Roberta Baskin, बॉस्टन में भी and so she asked एक इंटरव्यू, very intense questions, and the theme रॉबर्टा बास्किन, उसने एक इंटरव्यू किया था और बहुत सुंदर क्वेश्चंस पूछे थे। times in which we are living. So then the connection was सब जगह जो थीम रखा था अनसर्टेनिटी, how to maintain the uncertain times in which we are living, तो this uncertainty. कैसे ये सब बातें होती है, उसके बीच में हम कैसे अपने को मजबूत रखें, ऐसी सारी बातें थी। To do the interview. She's been a friend of the BKs for a long time. हम्म, And then we had the call of time, and तो वो तो अनुभव ये इंटरव्यू कर सके थे। mostly all of them were new friends. फिर कॉल ऑफ टाइम था, बहुत थे People who we know from past पावरफुल इंडिविजुअल्स थे वहाँ पर, and it सब was नए लोग ही थे। about 23 who came together. 2 आत्माएं जो पहले से आए हुए थे, लेकिन अब इस बार ज्यादा करके सब नए ही थे। Who also was supporting the dialogue. So नई टीम ही सारा संभाल रहे थे। then there were 24 hours in Toronto, and the highlight there again, a beautiful space and the public program there. But the फिर highlight 24 घंटा हम टोरंटो में थे, minister तो वहाँ पर भी हाईलाइट कि बाबा का सेंटर बहुत बढ़िया जगह, Italian origin, and he was एक फेडरल मिनिस्टर फॉर मेंटल हेल्थ, इटली का है। contact of his an Indian businessman, तो उसको मेडिटेशन में बहुत ही इंटरेस्ट रहा। and so he was fascinated by what he एक इंडियन बिजनेसमैन उसका कांटेक्ट था, तो उसको शिवानी बहन से कांटेक्ट कराया था। तो जो सुन रहे थे उसको बहुत अच्छा लगा और उस आधार से वो इंडिया गया, ओआरसी में रहे, आशा बहन शिवानी बहन से मिले और गहराई से समझना चाहते थे मेडिटेशन क्या है। और उसका प्लान है कि गवर्नमेंट, कनाडा के गवर्नमेंट को बताए कि हम कैसे सभी स्कूलों में मेडिटेशन कराइए, क्योंकि उसने देखा खास करके छोटे जवान लोग मेंटली बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं जो सब बातें होती है उसकी, तो इसलिए मेडिटेशन से कैसे उनको मदद मिल सकती है। तो ये मिनिस्टर है वो ये करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो स्कूल में भी शायद मेडिटेशन ऐसे पढ़ा सके, सिखा सके। Yeah, wonderful.
तो ये भी बहुत you so अच्छी much. बात Jinta, रही just one वहाँ last पर। question. What's your ये favorite कैसे संभव हो सकता है? self-respect बहुत अच्छा refrain, रहा। slogan, statement, point? I am God's आपका child. सबसे फेवरेट स्वमान क्या है? Simple. Because when you remember who your parent is, मैं and ईश्वर who की you संतान हूँ। belong to, it immediately raises your self-esteem. हाँ, अब जब आप याद करते हो हमारे माता पिता कौन है, किस परिवार में आपने जन्म लिया है, तो आपका सम्मान उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। Lovely, thank you. भगवान So का next revision संतान will be होना on June 5th. उससे ऊंच See और you क्या all हो next सकता week. है। We'll तो end with a nice meditation and Drishti from Sister Jayanti. Thank you so much. Thank you, Arinaben, and तो thanks अभी to हम everyone. थोड़ा योग करेंगे। 5 जून को नेक्स्ट मंडे हम दूसरी बारी मिलेंगे जयंती बहन से। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Just to know you, just to live inside your grace, just to feel you. In my heart at this time, in this place, there is peace in every breath as my mind dwells on your name, finding peace, peace within, treasure